अच्छा भाई, last time we have discussed the internal structure of leaf, and from that we start our today's lecture. Internal structure of leaf, or in fact internal structuralist, steps of photosynthesis. Steps of photosynthesis. ठीक है भाई. अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि वेयर द क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड आर प्रेजेंट. कोई बता सकता है मुझे? जिस प्लांट्स में होते हैं. प्लांट्स में होते हैं. और इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? यस, लीफ में आई थिंक. यस, लीफ में. और लीफ में ग्रीन कौन से पिगमेंट टिश्यूज में होता होता है. है? हाँ, लोकेशन ऑफ वो नहीं पता. ओके, क्लोरोप्लास्ट. ये जो मेरा लास्ट लेक्चर है ना, उसके अंदर इसकी लोकेशन वगैरह सब बताइए. लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन पैलिसार्ड मेसोफाइल एंड स्पंजी मेसोफाइल. पैलिसार्ड, mesophile cells and spongy mesophile cells. Spongy mesophile cells. Both of them. First, I am going to make palisade mesophile cell. Okay, palisade mesophile cells. This one. It has got cell wall, cell membrane, and another one. It has got all normal organelles of the cell, but I am going to focus on chloroplast because they are highly packed with chloroplast, which contains the green pigment or the light sensitive pigment that is called the chlorophyll. Okay. Acha, as far as spongy mesophile are concerned, spongy mesophile cells are concerned, they are round in shape and same content is present inside them also. Cell wall, cell membrane, okay, and so many chloroplast. Cell wall, cell membrane, cell wall, cell membrane, and chloroplast. Okay, this is also the same thing, chloroplast. Now I'm going to take out the one chloroplast and magnify it. ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट जो है उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ. ये मैंने बाहर निकाल लिया और अब मैं इसको मैग्नीफाई कर रही हूँ. थोड़ा सा जिसे कहते हैं इसको हम मैग्नीफाई करके देखते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसा है. तो अगर हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, मोर और लेस ओवल शेप का होता है. ठीक है, और इसके ऊपर जो है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो पड़ी हुई नजर आ रही है, लाइक दिस. ठीक है, and when I take the TS of that chloroplast, that is the transfer section, I cut it from the center.
then there are further organelles are present inside it. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रही हूँ, उसको कट करके जब हमने बीच में से काट के देखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन मैंने बना दी है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें स्टेक लाइक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, that are called the grana or granum. They are the also called thylakoid. अब जैसे ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन जो है, ये एक्सटेंड होते होते अपने से ये स्टेक्स बनाती चली जाती है इस तरह, ठीक है। And these structures are called granum and collectively called the thylakoid. And they are interconnected with the inner membrane. ठीक है, all of them are filled with the green pigment that is called the chlorophyll. ठीक है, अभी मैं इसकी लेबलिंग भी कर दूंगी। ये सारे के सारे जो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल से भरे होते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर क्यों नजर आता है ये भी बताती हूँ। और every time the chlorophyll is not of green color, it might be purple color, it might be red color, it might be light green, it might be yellow, it might be blue, violet, indigo, depends upon the color of the light which is reflect back. Most of the plant reflect back the green light, that is why, and absorb the other remaining 6 colors. That is why the leaves of the plant appears to be green in color, because that light is very less intense and of no use in photosynthesis. That's why it's reflect back and detected by our eye. और फिर इस तरह क्या होता है, हमारी आंख को जो है वो जो कलर नजर आ रहा होता है पत्तों का, वो ग्रीन नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर लिक्विड मटेरियल स्ट्रोमा मौजूद होता है जो कि मोर और लेस साइटोप्लाज्म जैसा होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से मिलता जुलता होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें इसका अपना एक फ्री डीएनए भी होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। फ्री डीएनए का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मतलब फ्री डीएनए अगर मौजूद है तो ये क्या क्या कर सकता है? इट कैन इजीली रेप्लिकेट, ये अब 1 से 2 में डिवाइड हो सकता है। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, inner membrane. This liquid part is called the stroma, and these stake-like structure called the thylakoid. ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज होती है? क्लोरोफिल। And it has also got the free DNA. फ्री डीएनए, सही है, इनके अंदर फ्री डीएनए मौजूद होता है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, 2 मेजर स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर स्टेप। One is the light reaction, and other one is the dark reaction. ठीक है, steps of photosynthesis, light reaction and dark reaction, and both of them are carried inside the chloroplast. Both of them carried inside the chloroplast. Carried in the chloroplast. यहाँ तक बात समझ में आई? Shall I proceed? Yes, miss. Okay, now I'm going to clean the board. Not all, but some part.
कुछ पोर्शन जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ. Please ignore these labels because if I'm going to remove these lines, the diagram is going to be spoiled. ठीक है, तो ये लाइंस जो है वो मैंने छोड़ दी है ताकि डायग्राम जो है वो स्पॉइल ना हो. इसी से मुझे जो है जैसे कहा जाए कि आप लोगों को लाइट एंड डार्क रिएक्शन समझाना है. टीएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, टीएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis. There are two major steps. Number one is the light reaction. Light reaction or light dependent reaction. And number two is the dark reaction. Okay. Light reaction is also called the light dependent reaction. Light dependent reaction. इसको क्या कहते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. अच्छा, डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. Independent dependent reaction. Now, how the light dependent reaction takes place? Light dependent reaction takes place. Both of them takes place inside the chloroplast. Both steps. क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है. अच्छा, लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस in thylakoid. Thylakoid, where chloroplast is present. Sorry, chlorophyll is present. Chlorophyll is present. Okay. Whereas dark reaction in liquid part, that is called the stroma. ठीक है, where no chlorophyll is present. Okay. Now, first we discuss the light reaction, how it takes place in thylakoid. Okay. In chloroplast, where the thylakoids are present, four factors comes or four major components comes inside the thylakoid. ठीक है, चार major components जो होते हैं और molecules जो होते हैं वो thylakoid के अंदर आते हैं. Number one, water from roots following xylem. ठीक है, water आता है इसके अंदर, H2O. Number two, carbon dioxide from stomata inside the thylakoid और क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसी थाइलाकॉइड के अंदर दूसरी चीज क्या आती है? लीव्स के स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड. एंड द थर्ड वन इज द sunlight. Sunlight received from the upper epidermis. Okay, upper epidermis से receive होती है sunlight. This one. Okay, so the three things are here, and the fourth one, that is the chlorophyll, is already present inside the thylakoid. Okay, what happens inside the thylakoid, that is where the chlorophyll is present. In thylakoid,
breaking of bonds, breaking of bonds of water, carbon dioxide takes place. Due to the breaking, what happens? They become in a free state, that is hydrogen, carbon, oxygen. So many hydrogen, carbon and oxygen are present in atomic state. They come in the atomic state, bonds are broken down. Understand? With the अच्छा energy कहाँ से आ रही होती है? Energy comes from sunlight. Energy comes from sunlight and charged by क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल के जरिए. क्लोरोफिल जो होता है वह एक ऐसा केमिकल होता है जो लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और फिर उसके बाद उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मदद से ये बॉन्ड्स को तोड़ के फ्री एटम्स में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. So there are billions and billions of or unlimited number of hydrogen atom, free hydrogen atom, free oxygen atoms and free carbon atoms in the thylakoid. And after that, here the light reaction is completed. Light reaction यहाँ पे complete हो गया. Okay, shall I clean the board or that part? ये जो box में मैं कर रही हूँ इसको मैं clean कर दूँ. You people have jotted down. Yep. Okay. Okay, इसको मैं clean कर. Now what happened in the dark reaction and where it is takes place? Okay. Now the dark reaction takes place in the stroma. In the stroma, what happens? The free carbon, free atoms of, actually ये ऐसा होता नहीं है, ये पूरी एक साइकिल चलती है और इसमें जैसे कहा जाए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बट हमारे कोर्स का वो सब हिस्सा नहीं है. दैट्स व्हाई इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है. बट ये कि इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड हाउ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट with the help of a light and a dark reaction. I am explaining you in this way. ठीक है, free atoms of carbon, oxygen, hydrogen are present or thrown from the thylakoid. वहां से जो है इनको फेंका जा रहा होता है तोड़ के किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर. And in stroma, the rearrangement of carbon, hydrogen and oxygen molecules takes place. Molecules in carbon, hydrogen and oxygen atoms takes place to form C6H12O6 molecule, that is glucose molecule. समझ आ गई बात? क्या होता है कि यहाँ से जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं वो थ्रो किए जाते हैं इस स्ट्रोमा के अंदर. ठीक है, ब्लू से बनाती हूँ. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर इनकी असेंबली होती है. जब इनकी असेंबली होती है तो ये किस में बन के बाहर निकल रहे होते हैं? ये C6H12O6 एक पूरा पैकेट जो होता है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का बन के निकला.
इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो होते हैं C6H12O6, इस तरह के पैकेट्स जो होते हैं वो बन बन के निकल रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? अब जब ये बाहर निकल रहे होते हैं तो इनमें से सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मोस्टली जो होते हैं वो फ्लोएम के जरिए जो होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। कुछ जो होते हैं ग्लूकोज वो स्टार्च की फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं। दैट इज व्हाई we get the positive starch test on leaf, है कि नहीं? है लीफ में स्टार्च टेस्ट जब भी किया जाता है तो वो क्या आता है? वो पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है? बिकॉज बहुत सारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो इन्हीं स्टेक्स के अंदर, थैलेकॉइड के अंदर और स्ट्रोमा के अंदर कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि स्टार्च ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। डेफिनेटली जब भी एनर्जी की जरूरत होगी, जब सनलाइट मौजूद नहीं होगी तो ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होगा और क्लोरोप्लास्ट जो है उसको भी रेस्पिरेशन की जरूरत होगी, वो भी रेस्पायर करेगा, उसे एनर्जी की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो है स्टोरेज मटेरियल जो है सेल जो होगा वो यूटिलाइज करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा अमाइलेज के थ्रू और फिर उसके बाद जो है उसको किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ना सिर्फ ये स्टार्च क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, बल्कि ये सेल के दूसरे जो इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि वैक्यूल्स हैं और न्यूक्लियस है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग, साइटोप्लाज्म की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी यूज हो रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? जी मिस, आ गई। ओके, शैल आई क्लीन द बोर्ड? आई थिंक सो। ठीक है, सो हियर द लाइट एंड डार्क रिएक्शन इज completed. Now with this, we will have to see the presence of starch inside the leaf. ये एक इन्वेस्टिगेशन जो है ना स्टार्च टेस्ट की जो है ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं स्टडी कर लेते हैं, बाद में इसको डीप स्टडी करेंगे। क्योंकि अभी हमने स्टार्च की बात की है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो स्टार्च टेस्ट कैसे हम करते हैं परफॉर्म वो भी देख लेंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसको स्टार्च टेस्ट लीफ का पर जो है वो याद हो? हाँ टीचर लीफ को बॉईल करते हैं। नहीं, पहले हाँ, चलो ऐसे ही एपरेटस पहले लिखते हैं। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, एपरेटस लिखते हैं। ठीक है, आता है आपको? आता है हाँ, आपको स्टार्च टेस्ट आता है लीफ का? बताएं जरा क्या है। हाँ, पिगमेंट होता है। हाँ हाँ, जोर से बोलो। हाँ, green if the starch is not if the starch is present in leaf, हाँ, it will turn yellow. the leaf will turn blue black if iodine is If poured on it. iodine is poured on Yes. it, and if iodine is not there, then it will turn Starch is not yellow. there, If the starch is not present there, the iodine remains. the iodine remains same. Okay. He's in class 6. अच्छा भाई, एपरेटस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 बीकर, ठीक है। नंबर 2 टेस्ट ट्यूब, नंबर 3 ट्राइपॉड स्टैंड, Beaker, yes, tripod stand, and number 4 beaker, water,
Number 5, ethanol. Though they are not, water and ethanol are not included in the apparatus, they are chemicals. Okay, chemical की category में आ जाते हैं. Water, ethanol, and sixth one is the iodine. Iodine, these are the chemicals. Boiling tube. Chemicals. Okay. अच्छा. 7 one is the tile. ठीक है. और कोई चीज जो जहन में आ रही हो? ग्लास रॉड. ग्लास रॉड. वजन बर्ड. Am I right? यही सब जरूरत होती है ना चीजों की. तो अब्दुल रहमान सबसे पहले क्या करते हैं? पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. चलो भाई अब्दुल रहमान बताओ. जी सबसे जितना पहले भी बॉईल याद है. करते हैं. बॉईल करते हैं. अच्छा, बॉईल करने के लिए हम क्या करेंगे कि बीकर लेंगे और बीकर के अंदर पानी भरेंगे और इसको जो है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे. अच्छा, मेरी ड्राइंग जो है अगर थोड़ी गड़बड़ शड़बड़ हो तो प्लीज इसको थोड़ा ओमिट कर दीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ड्राइंग जो होती है वो साथ नहीं देती. स्पेशली जिसे कहा जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स होती हैं इस पे. तो वायर गॉस के ऊपर हमने इसको रखा. ट्राइपॉड स्टैंड है. ठीक है. और एक हमने और साथ में जो है बजन बर्नर जो है या स्प्रिट लैंप हमने यहाँ पे रखा है. ठीक है. अच्छा, इसको मैं रेड कलर से बनाती हूँ क्योंकि फायर जो है वो रेड कलर से ही बनेगी. ठीक है. अच्छा, और इसमें जो है fill it with water and heat it. Heat the leaf. एक ग्रीन लीफ ले लेंगे. काफी बड़ा सा मैंने लिया है. ठीक है. ऑलमोस्ट बीकर के साइज का. ठीक है. and we boil it. अच्छा, why we boil the leaf? Can anybody tell me? हाँ? Why we boil the leaf? इसका रीजन बताओ. Why? In order to stop all the biochemical reactions. In order to stop all the biochemical reactions. ठीक है. जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको रोकने के लिए लीफ को तकरीबन डेड कर दे ताकि वो कोई मजीद स्टार्च प्रोडक्शन या ग्लूकोज की प्रोडक्शन ना करे. डेड हो जाए. ठीक है. देन वी टेक आउट द लीफ एंड उसके सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? ये तो स्टेप 1 हो गया. ना सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? We place the leaf in ethanol in a test tube and put the test tube in hot water bath. एक बीकर लेंगे, उसके अंदर जिसे कहते हैं कि पानी पहले से भर लेंगे. हॉट वाटर. ठीक है. ठीक है. और टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ को रखेंगे. बॉयल लीफ को. ठीक है. उसी बॉयल हुए हुए लीफ को रख देंगे और इसके अंदर क्या भरी हुई होगी? इथेनॉल भरी हुई होगी. इथेनॉल मोर और लेस वाटर के कलर की होती है. ठीक है. एंड हॉट वाटर बाथ. प्लेस द लीफ इन हॉट वाटर बाथ.
place leaf in ethanol and put it for some time in hot water bath. Why? अब यहाँ पे भी सवाल होता है why? क्यों? इधर जो है इथेनॉल के अंदर क्यों रखते हैं? बता सकता है कोई मुझे क्या चीज टीचर? कि लीफ को जो है हम बॉईल करने के बाद इथेनॉल में क्यों रखते हैं? ताकि क्लोरोफिल सारा खत्म हो जाए लीफ से। Yes, yes, as we know that, यहाँ पे मैं इसको पार्टीशन करके आपको लिख देती हूँ। As we know that ethanol, sorry, ethanol is best number one decolorizing agent, and number two best dehydrating agent. So when we put the leaf inside the ethanol and in hot water, it first decolorize the leaf. It decolorize the leaf, extracting all the colored chlorophyll. ठीक है, जितना भी कलर्ड क्लोरोफिल है वो बाहर निकाल लेगी. सेकेंड वन इज टू रिड्यूस द पोर साइज ऑफ लीफ. So starch can't be escaped. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पोर साइज बढ़ेगा कैसे? बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग इंक्रीजेस द पोर साइज. बॉइलिंग इंक्रीजेस द पोर साइज.